Praise the Lord. We're और- so happy to have Pastor Rajesh Malaki with us. और हम बहुत ही खुश हैं कि आज पासबान राजेश मलाकी हमारे बीच में हैं I would say a great servant of the Lord. और मैं कहूँगा कि परमेश्वर के महान दास हैं. I'll just read this. I know most of you know Pastor Rajesh, but I just would like to share a brief information about Pastor Rajesh. Pastor Rajesh Malaki serves as the lead pastor of Full Gospel Church. पासबान राजेश मलाकी के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन कुछ बातों को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी. पासबान राजेश मलाकी जो है फुल गॉस्पल चर्च के मुख्य पासबान के रूप में पदभार संभाले हैं. The church is situated in Jaipur. और कलीसिया जो है जयपुर में स्थापित है. He accompanied with his wife, Sister Olive, और आज उनके साथ उनकी पत्नी ओलिव हमारे बीच में आई हैं. and his children Anugrah and Aradhana. और उनके दो बच्चे हैं, अनुग्रह और आराधना. He's a catalyst coach and a regional director in GACX South Asia. और वो GACX साउथ एशिया के जो हैं कोच और जो रीजनल डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाले हैं. He is used by God for developing strategic missional work networks and partnerships to advance the progress of the gospel among the unreached people of the world. और परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है कि स्ट्रेटेजिक मिशनल नेटवर्क और पार्टनरशिप संधियों के साथ में जहां पर अब तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है. He is passionate about developing marketplace ministers and catalyzing city transformation. और ये बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा जोश से भरे हैं इस बात को लेकर कि साधारण लोगों को जो मार्केट प्लेस में रहते हैं, जो बाजारों में रहते हैं, उनको प्रभु के सेवकाई करने को सिखाने को तत्पर हैं. We thank you, Pastor Rajesh, for accepting our invitation to be our first speaker this morning. और पासबान आपका धन्यवाद कि आपने ये न्योता And we want स्वीकार to give किया. you a very big welcome. Please come, हम आपको Pastor. बड़े तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं. Thank you, Pastor. A very warm welcome to all of you this morning in Jesus' matchless name. और आपको आज सुबह के समय में आप सभी का यहाँ पर स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से. And want to thank the Lord for this beautiful gift of life which God has given to each one of us. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस उपहार के लिए जो उसने हम में से प्रत्येक को दिया है. And want to thank Pastor Agnello's sister, for giving me this opportunity to minister the word of God this morning. और परमेश्वर पिता का और पास्टर एग्नेलो का और उनकी वाइफ सिस्टर निकोला का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस अवसर को हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन को आज पहली बार में And सुन it's so सकें. nice to see, the fellow servants of God from Pink City. और आज गुलाबी शहर से जो है साथी सहभागी पासबानों को यहाँ पाकर के बहुत उत्साहित हैं. You all are precious. आप सब बहुमूल्य हैं. You all have a great potential. आप सबके पास में बहुत ज्यादा क्षमताएं हैं. God has placed you in a very strategic place. और आप परमेश्वर ने आपको बहुत रणनीतिक रूप से जो है इस जगह में रखा And है. it's my prayer that God may bless you, your family, and your local church, and bless this beautiful city of Jaipur, and bless Rajasthan. और ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि परमेश्वर जो है आपके द्वारा इस शहर को, इस खूबसूरत शहर को आपके द्वारा, आपकी उपस्थिति के द्वारा, सेवकाई के द्वारा आशीषित करे. God has placed each one of you in a very strategic position. परमेश्वर ने आप में से प्रत्येक को बहुत ही रणनीतिक रूप से जो है उन क्षेत्रों में रखा है. And as I said earlier, you are precious. God has given you the giftings and the potential, to expand and to advance the kingdom of God. और मैंने जैसे कहा कि परमेश्वर ने आपको क्षमताएं दी हैं, आपको जो है बहुत से वरदान दिए हैं कि आप जो है परमेश्वर के राज को फैला सकें. And praise God for each servant of God. Praise God for the fellowships that are going on in the city and the state of Rajasthan.
And it's our prayer in the days to come, as we see the coming of the Lord near, we will see the gospel being advanced. We will see the kingdom of God being established in the hearts of people. और हम देख रहे हैं कि जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो सारे पासबान और जो सारे जो हैं सेवकाइयाँ चल रही हैं, जो फेलोशिप चल रही हैं, संगतियाँ चल रही हैं, और हम देखना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर का राज्य जो है वह बढ़ता जाए, क्योंकि प्रभु का आने का दिन निकट है. There are some senior servants of God sitting here. They are more experienced. So I want to recognize and honor each one of you. और मैं जो है यहाँ पे बहुत ही जो है कई सीनियर पासबान यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं आपकी उपस्थिति को यहाँ पर जो है एक्नॉलेज करना चाहता हूँ. But this morning I want to encourage each one of you with the word of God. और मैं आज आप में से प्रत्येक को जो है परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता And the हूँ. very theme why we have gathered, the very word, the thing is, the key word is revive, renew and restart. और यहाँ पे जो मुख्य जो बातें कुंजी बातें लिखी हुई हैं वह है पुनर्जीवित होना, नयापन और नई शुरुआत. When we are in the ministry, there are so many things that happen. और जब हम सेवकाई में तो बहुत सी बातें जो है होती हैं. It's not easy. It's a long haul. And many times what happens, you get tired and exhausted. और ये बहुत लंबी दूरी का जो है एक हॉल जैसा है, जिसमें आप जब चलते जाते हैं तो आप थक जाते हैं. But praise God for the Holy Spirit of God, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, who girds us with strength and power. और जो हमें जो है हमारी रक्षा करता है और हमें जो है बल देता And है. it's time again that we reboot our system, we revive ourselves, come with that great energy, to see God's vision in our lives. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वह जो है हमारे मदद करता है कि हम जो है पुनर्जीवित हो सके, हम जो है तरोताजा हो सके, और हम जो है परमेश्वर की उन क्षमताओं को प्राप्त कर सके. Perhaps this morning you may be feeling slightly exhausted and tired. और मैं सोचता हूं कि आज की सुबह में आप में से बहुत से लोग थके हुए होंगे. But I have a word of encouragement this morning. परंतु मेरे पास में आपके लिए उत्साहित वचन है. There is a strength from above that can revitalize you. You'll get new vigor and vitality, and God will strengthen you and take you to a greater heights. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरोताजगी आप परमेश्वर आपको देना चाहता है, ताकि आप जो है नई ऊंचाइयों को छू सकें. And the time has come that we seize God's kingdom opportunity. और जब ये समय आएगा कि हम परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध उन अवसरों को जो उसके राज के लिए हम पकड़ लेंगे. Not to be passive, इसलिए नहीं क्योंकि हम उसमें भरना चाहते हैं, but उसे be पाना चाहते हैं, proactive in proclaiming the gospel of Jesus Christ. परंतु इसलिए कि हम जो है परमेश्वर के राज्य के लिए जो है ताजा रूप से काम करते The जाएं. city needs more local fellowship. The city needs more leadership. The states need so much of leadership and local churches. और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस शहर को जो है नई संगतियों की जरूरत है, और अधिक जो है अगुओं की जरूरत है. इस प्रदेश को और अधिक अगुओं की जरूरत If है. you see the population and the number of fellowship you have, there is a big gap. We need more fellowship. We need more leaders in the city and this church, in the state. और आप देखिए कि जो है इस शहर में और इस प्रदेश में आप पाएंगे कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और जो संख्या संगतियों की वो बहुत कम है, परंतु उसे बढ़ने की जरूरत The है. time has come that we need to ask God that, Lord, ask of me, says, I will make you nations, your inheritance, the ends of your earth, your possession. और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे मांगो और मैं जो है तुम्हें पृथ्वी के छोर तक का स्थान तुम्हें दे दूंगा कि वो तुम्हारा हो जाए. Building His kingdom with His grace and power. और परमेश्वर के राज्य को उसके अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य से बनाना. So many times what happens, we live in our own bubble. और कई बार ऐसा होता है कि हम अब स्वयं के द्वारा बनाए गए बबल में रहते हैं, बुलबुले में रहते हैं, उसमें रहते हैं. We stay in our own bubble. हम कई बार जो है अपने स्वयं के बुलबुले बनाए हुए Many बुलबुले में times रहते हैं. we stay in our own kind of periphery, same area, same. और कई बार हम स्वयं के द्वारा बनाए गए सीमाओं में रहते हैं. Many times we prefer to stay in our own. It's more like a silo. और कई बार हम जो है अपने स्थान में बनाए हुए अपने स्थान में रहना चाहते हैं. You know what is silo? आप जानते हैं साइलो क्या है? भूमिगत कक्ष. भूमिगत कक्ष है. शुद्ध हिंदी में भूमिगत कक्ष. भूमिगत कक्ष है शुद्ध हिंदी में. Silos. साइलोस. In भूमिगत our कक्ष. own bubble. हमारे स्वयं के बनाए हुए बुलबुले. But God has not called us for that. परंतु परमेश्वर ने हमें उसके लिए नहीं बुलाया है. God has called for something else. परंतु परमेश्वर ने किसी और बात के लिए हमें God has बुलाया. called us to step out. परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम कदम बढ़ाएं.
and to step out and to see what God is speaking in our lives, for our family, for our local church. और हम देख पाए कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है हमारे स्वयं के जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारी सेवकाई के लिए। One local fellowship cannot win the city, और आप जानिए एक स्थानीय संगति जो है पूरे शहर को जीत नहीं but सकती। we need multiplying local fellowships. We need multiplying leadership to reach the city and the state. और आप जानिए हमें जो है गुणात्मक रूप से वृद्धि करने वाली जो है संगतियों की आवश्यकता है, जो शहर तक पहुंच सके और पूरे प्रदेश तक God पहुंच is सके। he's saying, ask of me, ask of me. और परमेश्वर कह रहा है मुझसे मांगो, मुझसे I मांगो। will give you nations, I will give you people, I will give you people. You know, the time has come that we keep aside all our differences, all our ideological, theological differences, and talk and speak the word of God, the kingdom of God. और परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें देशों को तुम्हारा अधिकार होने के लिए, तुम्हारा भाग होने के लिए, लोगों को तुम्हारा भाग होने के लिए दे दूंगा। आइए हम जो है अपने विचारों को, अपने जो है धर्म ज्ञान की बातों को हम लोग अलग रख करके हम एक साथ जुड़ें। And it's important that we start building kingdom hubs in the city, in the state. और अब जानिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो है राज्य के स्थान जो है इस शहर में, इस प्रदेश में बनाना शुरू करें। You know, those hubs, the kingdom hubs, those hubs that will activate the power of God. People will be drawn to that place. People that will be place of revival and healing. और ऐसी जगहों को बनाना शुरू करें जहां पर लोग आ सकें, लोग अनेक स्थानों से आ सकें, वहां पर वे लोग जो है पुनर्जीवित हो सकें और वे लोग चंगाइयों को प्राप्त कर सकें। I want to ask you a question. Are you sensing God's kingdom momentum? क्या मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप परमेश्वर के राज्य के उस बात को पा रहे हैं? Are we celebrating God's kingdom momentum? क्या हम जो है परमेश्वर के राज्य के मोमेंटम को हम लोग महसूस कर पा रहे हैं? उसको गति या रफ्तार कहते हैं। रफ्तार को हम लोग जो है समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? Are you sensing, are you celebrating God's kingdom momentum? क्या आप परमेश्वर के गति को जो है समझ पा Are रहे you हैं? enjoying God's presence? Are you enjoying the God's speed in building His kingdom? क्या आप परमेश्वर की गति को जो है आनंद मना पा रहे हैं, उसके राज्य को जब आप बना रहे हैं? Are you sensing the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit to move further, faster and together? और क्या आप जो है पवित्र आत्मा को महसूस कर पा रहे हैं कि आप जो है और आगे बढ़ सकें और तेज बढ़ सकें? Dear servants of God, प्रिय पासबानों, we have to move further, faster and together to build His kingdom. हमें जो है साथ मिल करके एक साथ आगे बढ़ करके तेजी से आगे बढ़ना ताकि हम उसके राज को बना सकें। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Build His kingdom. उसके राज्य को बनाएं। You know, God is raising a new breed of leaders. और आप देखिए परमेश्वर जो है नई पीढ़ी को तैयार कर रहा है A उसके new राज्य के breed. लिए। That doesn't mean, old senior people, they are foregone. I और- don't mean to say. और इसका ये अर्थ नहीं कि परमेश्वर जो है पुराने और जो तजुर्बेकार अगुवे हैं उनको हटा रहा है। We respect senior servants of God. We respect their seniority. We respect their experience. We experience. और हम जो है हमारे जो अगुवे हैं, जो सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, जो तजुर्बेकार हैं, हम उनका आदर करते But हैं। God is building a new kind of stream, a new breed of leaders, those who are sensitive to the voice of the Holy Spirit, those who are sensitive to build His kingdom and in His movement. और आप देखिए परमेश्वर जो है नई पीढ़ी को तैयार कर रहा है कि ऐसे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं कि उसके राज को बढ़ा These are the सकें। people on a cutting edge. और ये वे लोग हैं जो बिल्कुल जो है इस पीढ़ी के कटिंग एज में हैं। These are the people, those who are willing to take risk. ये वे लोग हैं जो है रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। These are the people, those who they are desperate for God. और ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे Those are the हैं। people who are hunger and thirsty for और God. ये वे लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे और These प्यासे are the हैं। people who dwell in the presence of God in और the ये- holies of holies. और ये वे लोग हैं जो महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में जो रहते हैं। God is moving. परमेश्वर जो है काम कर रहा है। There is a sweep, there is a wave and apostolic grace that is sweeping the nations of और the world. आप देखिए इस समय में जो है एक तरह से स्वीप चल रहा है, एक तरफ से परमेश्वर का लहर चल रहा है जिसमें there परमेश्वर is a जो प्रेरितों को wave. तैयार कर रहा There है। is a wave. Let me tell you, God is building His church.
और ये एक लहर है जिसमें परमेश्वर अपने कलीसिया को स्थापित कर रहा है। Jesus said, यीशु ने कहा, I will build my church, मैं अपनी कलीसिया and the बनाऊंगा gates of hell will not prevail against it. और अधोलोक के फाटक उसके Who विरोध में said? प्रबल ना हो पाएंगे। Jesus said, I will build, यीशु ने कहा मैं बनाऊंगा, and he says, my church. और वो कह रहा है मेरी कलीसिया। Hello, are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? He said, I will build my church. और वो कह रहा है कि मैं मेरी कलीसिया और मैं बनाऊंगा। And who are we? और हम कौन हैं? We are co-laborers. हम उसके साथ सहकर्मी हैं। We are mazdoor. हम जो है साथ में काम करने वाले मजदूर हैं। Huh? We are mazdoor. We are co-laborers. We are co-heirs. And what a privilege to build His kingdom. और हम उसकी पीढ़ी में से, और ये कितना हमारे लिए सौभाग्यशाली कि हम उसके राज को बना पा So रहे what the हैं। time has come that we lift up our eyes and look at the city, look at the state, look at the nations, and see the great kingdom picture, and see thousands being coming to the saving knowledge of Jesus Christ. और ये कितनी अद्भुत बात है कि हम उठ खड़े हों और हम देखें अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अब इस देश में कि जो है हजारों लोग यीशु के पास आ रहे हैं। See the divine blueprint. See what is happening in our city, in our families, in our local church, and see how God's kingdom can be advanced. और आप उठ खड़े हों और देख पाएं कि जो है कैसे जो है परमेश्वर का नक्शा जो है उसके राज के फैलाव का काम कर रहा है। Let us unmask the destiny of the cities. आइए हम जो है इस शहर के जो लक्ष्य को जो प्रभु के पास उसके राज में पढ़ना है, There's so उसको much of पालें। potential in this city. और इस शहर में बहुत क्षमताएं There's so हैं। much of things to be done in this beautiful city and और state of Rajasthan. इस शहर में बहुत से काम करने बाकी है और इस प्रदेश में बहुत से काम करना बाकी है। Let's unmask. आइए हम जो है मुखौटा उखाड़ फेंकें Let's unmask the revelation, the destiny of the city and the nations. और आइए हम जो है इस प्रदेश का और इस पूरे देश का जो है मुखौटा उखाड़ A फेंकें। greater revelation from God, as a corporate leadership, the corporate leadership is to build the city, to build His kingdom. और जो है एक बहुत बड़े अगुवाईपन की बुलाहट की मिल करके जो है इस शहर को परमेश्वर के राज के लिए जीते और प्रदेश को इस परमेश्वर के राज के God लिए is जीते। speaking to us to change our mindset, परमेश्वर बुला रहा है कि हम अपने विचारों को बदल दें। to revive, to renew, to restart. We'll have to change our mindset. पुनर्जीवित नयापन और नई शुरुआत के लिए जरूरी है कि हम अपने विचार को बदल दें। And this is the greatest battlefield. और ये जो हमारा मन है ये सबसे बड़ा युद्ध There's so भूमि many है। things happening. It happens over here. और बहुत सी चीजें जो हो रही हैं वो सब कुछ यहाँ से शुरुआत होती But है। there is a possibility when we seek God, when we seek His face, what will happen? Things will start changing in the realm. और आप देखिए जब हम परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं तो चीजें बदलने लग जाती हैं, वो वातावरण बदल जाता है। God is expecting us in this last of last days. और देखिए कि परमेश्वर जो है इन आखिरी से आखिरी दिनों में हमसे मांग कर रहा है That we understand that there is a wind of acceleration आप and जान advance is blowing. और आप देखिए कि एक हवा चल पड़ी है और परमेश्वर के राज की बढ़ती हो रही है। Are you sensing the wind of acceleration? क्या आप जो है उस एक्सेलरेशन के उस बढ़ती के जो है उस हवा को महसूस कर पा रहे हैं? The acceleration of His kingdom. उसके राज की बढ़ती की हवा को Hear महसूस कर पा and रहे हैं? receive, understand the wind of the Spirit. और आप जो है उसे सुने और प्राप्त करें उस पवित्र आत्मा के Let us समझ tune को। our ears to the voice of the Holy Spirit. आइए हम अपने कानों को जो है पवित्र आत्मा की आवाज के लिए तैयार करें। Receive His voice. आइए हम उसकी आवाज को ग्रहण When we करें receive His voice, we'll be able to partner with Him. और जब हम उसकी आवाज को ग्रहण करेंगे तब हम उसके साथ सहभागी हो It's all पाएंगे। about partnership. ये सब कुछ जो है सहभागिता के It's all विषय में about collaboration. और ये सब कुछ जुड़ जाने के विषय It is में not one man show, it is not our own bubble, it is not silo, but it is partnership, collaboration with Almighty Jehovah God. और आप जानिए कि ये जो है हमारे बुलबुले के विषय में नहीं है, ये हमारे अंदरूनी कक्ष के विषय में नहीं, भूमिगत कक्ष के विषय में नहीं है, परंतु ये सब कुछ सर्व सामर्थ्य परमेश्वर के विषय में है। Let us run in purpose for this hour. आइए हम जो है मिल करके जो है इस समय के उद्देश्य के लिए दौड़ें। As we see the coming of the Lord, आइए जब हम परमेश्वर के आने को देखते हैं, considering the brevity of life जब हम देखते हैं कि जो है जीवन कितना धूमिल है and the importance of the mission, the Great Commission, और हम जब देखते हैं उस महान आदेश के विषय में कि वो कितना महत्वपूर्ण है, and the coming of the Lord, let us run with purpose in this last hours. तो जब प्रभु का आना इतना निकट है तो आइए
आइए हम मिल करके इस आखिरी घड़ी में दौड़ें। Many people, they don't feel comfortable when I say last moments and last hour. और जब मैं कहता हूं कि अंतिम घड़ी या अंतिम क्षण, तो बहुत से लोग जो है उसमें बहुत आरामदायक महसूस नहीं करते हैं। you know, we have such a palatial house and such a palatial big ministry, and you're talking about winding up and all those things. How is it possible? और बहुत सी बार लोग कहते हैं, अरे हमारे पास इतना बड़ा घर है, इतना बड़ी सेवकाई है, आप कैसे ये सब चीज को छोड़ने और इस सब Let को me बंद tell करने you, के बारे में बात कर we रहे हैं? are in the kingdom of God, the invisible kingdom of God. We are serving Him. Everything which we have, we'll have to leave everything and go. और आप जाने कि हम लोग जो है इस परमेश्वर के राज में, एक ऐसा राज्य जो दिखाई नहीं देता, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसकी सेवा में जो है वह सब कुछ उसके राज्य में है। Let's do some introspection this morning. आइए हम सब कुछ जो है उसके In the light of His word, where are we? Are we running in His purpose in this last moments of our life, or we are having some other purpose in our life? आइए जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके आदर स्वरूप उसको करने पाएं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं इस समय में, क्या हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं या हम सचमुच में उसके उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं? What is the motive behind what I'm doing? जो कुछ मैं कर रहा हूं उसके पीछे जो है मेरा विचार क्या है? Is it for my self glorification? क्या ये मेरे स्वयं को जो है महिमा Or देने am के I विषय में building है? my own brand? Am I building my own kingdom? क्या मैं अपने स्वयं के राज को बना रहा हूं? क्या मैं अपने स्वयं के ब्रांड को बना रहा हूं? No. नहीं, It's all about Jesus. ये सब कुछ यीशु के बारे में है। It's all about His kingdom. ये सब कुछ उसके राज्य के It's बारे में all है, about His purposes. और ये सब कुछ उसके उद्देश्यों के बारे में है। He's bringing a revelation for the cities and the region. और आप Hallelujah. जानिए वो शहरों के लिए प्रकाशन को, और जो है इन क्षेत्रों के लिए प्रकाशन You को know, लेकर के आ God रहा wants to है। speak to each one of us. और आप जानिए कि परमेश्वर हम में से प्रत्येक He से बात wants करना to चाहता give a है, kind of a divine revelation. और वो चाहता है कि हम अलौकिक दर्शन को पाएं। As we spend time in His presence, और जब हम उसकी उपस्थिति में समय बिताते as we हैं, spend time in His holy of holies, जब हम आप उसके महापवित्र स्थान में समय को बिताते when we हैं, come to His banqueting house, और जब हम जो है उसके भोज के स्थान में आते हैं, that's the way we have a face-to-face encounter with Him. तब हम जो है उससे आमने सामने का मुलाकात करते हैं। Amen. आमीन। Encounter with God. हम परमेश्वर से सामना That's करते a हैं, place you have a word from God. और वो जगह होती है जहां पे आप परमेश्वर से वचन प्राप्त I करते like the हैं। verse in this book of Song of Solomon. It says, He brought me into His banqueting house, and the banner over me is love. और आप जानिए कि मुझे बहुत पसंद आता है ये गीत जो है, ये इस प्रकार से कहता है कि मैं वो जो है मुझे अपने भोज के स्थान में लेकर के आता है, और वो मेरे ऊपर में प्रेम का Amen. झंडा रखता है। What banner do हालेलुया। you have over your life? आपके ऊपर में कौन सा झंडा है? The banner of love. आपके ऊपर में प्रेम का झंडा As है। you come into His banqueting house, जब आप उसके भोज के स्थान में आते हैं, the banner of love is over your life. आप जानिए उसके प्रेम, The उसका banner प्रेम of का झंडा love आपके is जीवन over में, your family. आप उसका प्रेम का झंडा आपके The परिवार के banner ऊपर of है, love is over your local और fellowship. वो जो उसके प्रेम का झंडा जो आपके स्थानीय कलीसिया के साथ में है, No curse, no spell, no devices or schemes of the enemy will ever flourish because you have the banner of love. आप जानिए कि कोई भी श्राप किसी भी प्रकार के आपके विरोध में किया गया षड्यंत्र वो सफल नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर में जो है परमेश्वर के प्रेम का झंडा Bible है। says in Isaiah says, when the enemy shall come like a flood, the spirit of the Lord shall raise a standard against it. और यशायाह कहता है इस प्रकार से, जब शत्रु जो है बाढ़ के समान में आएगा तो पवित्र आत्मा जो है उसके ऊपर में जय दिलाएगा। Every tongue that rises against you shall be condemned and will be destroyed. और वो कहता है कि हर एक जुबान जो तुम्हारे विरुद्ध में उठती हैं वो उन्हें नीचा देखना पड़ेगा। Amen. Amen. He's bringing revelation. वह जो है प्रकाशन को लेकर The के आ only रहा है। thing we have to, repent. We have to see where I stand before Him. और आपको जानना है एक काम जो हमें करने की आवश्यकता है, वह है पश्चाताप। हमें जानना जरूरी है कि हम कहां पर हैं। You know, God wants to give a plan. और आप जानिए कि परमेश्वर जो है हमें योजना देना चाहता है, He wants to give a plan, and those plans are given in the realms of the Spirit. और आप जानिए कि वो जो योजना जो परमेश्वर में देना चाहता है वे जो है आत्मा के वातावरण में दी Hello, are जाती you है। with me? क्या आप मेरे साथ Those में हैं? plans have been revealed and spoken in the realms of the Spirit. आप जानिए कि वे जो योजनाएं हैं वे तब बोली जाती हैं जब आप जो है उन आत्मा के वातावरण में होते Amen. हैं। Heaven is speaking. God is speaking and releasing, the building anointing for us.
us. और आप जानिए जो है स्वर्ग बोल रहा है और वह जो है उस अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेल In रहा Isaiah है। chapter 57 verse 15 says, For thus said the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. और आप जानिए यशायाह उसका 57 उसका 15 इस प्रकार से कहता है कि वह जो सबसे महान है, जो अनंत काल तक जो है, Whose name is holy, I dwell in the high and holy place. ओ जो पवित्र है वो किस प्रकार से कहता है कि मैं जो है महा उच्च स्थान में और With पवित्र स्थान him में रहता हूं। also that is of a contrite and a humble spirit. और वह उनके साथ भी रहता है जो बहुत नम्र है और To दीन है मन revive में। the spirit of the humble ताकि वह जो है नम्र के आत्मा को जो पुनर्जीवित कर and सके revive the heart of the contrite ones. और जो जिनके हाथ टूटे हुए हैं उनकी जिनके हृदय टूटे हुए हैं उनको ठीक कर सके। You know the key words of this conference, the R3 is revive, to renew and to restart. और आप जानिए जो मुख्य यहाँ पर जो 3 शब्द हैं वह है पुनर्जीवित, नयापन और नई He's a शुरुआत। God who dwells in inhabits eternity. और आप जानिए ये परमेश्वर है जो अनंत काल में जो है रहता है And he revives the spirit of the humble, और वह जो है नम्र के हृदय को जो है पुनर्जीवित करता the है heart of the contrite ones. और जिनके हृदय टूटे हुए हैं उनको। What is the condition of our heart today this morning? हमारे हृदय की आज परिस्थिति क्या है आज की As सुबह में? servants of God, परमेश्वर के सेवक होने के how is नाते our condition? हमारी परिस्थिति कैसी Is there है? anything that is going on in our heart क्या कुछ ऐसा है जो हमारे हृदय में चल that रहा is है? not pleasing in the sight of God? हो सकता है कि वह परमेश्वर को जो है उसकी नजरों में Or पसंद maybe नहीं आ रहा something हो। that happened 5 years, 10 years ago, 15 years back, something that happened has not, that thing has not been confessed. और हो सकता है कुछ जो है आज से 10 साल 15 साल पहले कुछ बातें कुछ घटनाएं घटी जो परमेश्वर के सामने अभी तक But मानी I नहीं want गई। to tell you that He is a God of second chance. और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो दूसरा He is a अवसर देता है God who will revive. और वह परमेश्वर है जो पुनर्जीवित करता है A God who can revitalize you. और वह परमेश्वर है जो नया कर सकता है He can change, He can give you, He can change the gears of your life. और वह जो है आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है। You know, the psalmist asked a very interesting question. और भजन का लिखने वाला जो है बहुत ही अद्भुत बात पूछता And we है all are familiar with this verse. और हम सब लोग जिस वचन को Psalms जानते हैं 85 verse 6 and 7, the psalmist asked a very interesting question. Will you not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. और भजन संहिता उसके 85 अध्याय 6 से 7 पद में इस प्रकार से वो कहता है, क्या प्रभु तू हमें पुनर्जीवित नहीं करेगा? हमें पुनर्जीवित कर ताकि हम भी आनंद मना सकें। Maybe- अपने अनुग्रह को प्रभु हम पर दिखा। Perhaps you may be experiencing some fatigue in your life. और हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ जो है चीजों को जो है कुछ Running जद्दोजहद for को years together, there's so much of fatigue and that has creeped in your body, into your spirit, and now you need to unwind. Let me tell you, the Word of God says, I can revive you. I can give you strength to run. और जो है कई बार जो है आप जद्दोजहद कर रहे हैं अपने शरीर में, कई बार आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत समय हो गया ऐसा करते हुए, परंतु परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर सकता हूं। God wants to say, I want to revive. और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर सकता But हूं। sometimes, a person is not able to experience that revival in his life. और कई बार व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो है उस पुनर्जीवित को He नहीं is प्राप्त not कर able पाता to है। renew his strength. और कई बार जो है वह अपने बल को नहीं प्राप्त कर He पाता is है not able to really restart. और वह कई बार जो है अपने बल को नयापन नहीं कर पाता और कई बार शुरुआत नहीं कर He's पाता है trying, but he's not able to move. और वह कोशिश तो कर रहा है परंतु वो आगे नहीं बढ़ We पा all रहा are है। human beings. हम सब मनुष्य हैं We all have shortcomings and weaknesses. और हम सबके अंदर में हम सबके जीवन में जो है We कमजोरियां हैं। all need the strength of God. हम सबको परमेश्वर के बल की आवश्यकता है। What Isaiah verse 40 verse 31 said, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall run and not wait. और यशायाह उसका 40 अध्याय और उसका 31 पद इस प्रकार से कहता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और ना ही थकेंगे। Why there is there is a tug of war going on? और क्यों जो है एक युद्ध एक लड़ाई चली आ रही है खिस्तान की। Why I travel in different countries of this world. When I interact with God's servant, there is something happening. They need a start. They need to restart. They need to revive. They are wonderful people of God.
और मैं पूरे संसार भर में यात्रा करता हूँ, बहुत से पासबानों से मुलाकात करता हूँ और मैं पाता हूँ कि वे लोग जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, खींचतान में लगे हुए हैं। उन सबको पुनर्जीवित होने की जरूरत है, नयापन में आने की जरूरत है और नई शुरुआत करने As की I said आवश्यकता है। earlier, let me tell you, each one of you who is seated here and those who couldn't come this morning, each servant of God is precious in this city and in the state of Rajasthan. और जो है मैं आप सबसे कहना चाहता हूं जो आज सुबह यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो नहीं भी आ पाए हैं, कि आप में से प्रत्येक इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए बहुमूल्य हैं। Personally, I respect each servant of God in the city of Rajasthan, in the city of Jaipur and Rajasthan. और मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी पासबानों का, हर एक पासबानों का जो इस शहर में है और पूरे प्रदेश में, उनका मैं व्यक्तिगत रूप I से आदर करता appreciate हूं। each one of you what you are doing in the city and the state of Rajasthan. और आप में से प्रत्येक जो कुछ भी जो है आप इस शहर में कर रहे हैं और प्रदेश में कर रहे हैं, But मैं we उस सबका आदर करता we हूं। all are friends. परंतु हम सब मित्र हैं, We all are friends. हम सब मित्र हैं, We all are friends working together to establish the kingdom of God. हम सब मित्र हैं कि हम जो है साथ मिलकर के परमेश्वर के राज को स्थापित कर It रहे is हैं। not my church, your church, my mission, your mission, my organization versus your organization. It's about His church. और ये जो है आपकी कलीसिया और मेरी कलीसिया के बारे में नहीं है, मेरे मिशन आपके मिशन के बारे में नहीं है, मेरी संस्था और आपकी संस्था के बारे में नहीं, परंतु ये उसके बारे में है। Amen. आमीन। It's all about Jesus. ये यीशु के बारे में है। It's all about Him. और ये सब कुछ उसी के बारे में है। It's not about ego and logo. और ये जो है घमंड के बारे में और हमारे पहचान के लोगों के बारे में It नहीं है। is about Jesus. और ये सब कुछ यीशु के बारे में है। You know, people are worried about ego and logo. और बहुत से लोग जो है ईगो और लोगों के विषय में चिंतित No, रहते no, हैं। just keep it aside. आप उसे जो है Throw it in साइड the छोड़ दें। dustbin. आप उसे कचरे कूड़ेदान में Ego डाल दें। and logo doesn't work in the kingdom of God. और आप जानिए ईगो और लोगो जो है परमेश्वर के राज में काम नहीं करता है। What works? क्या काम करता है? Friendship, वो है मित्रता, relationship. वो संबंध, That works. वो यही काम And करता है। that will bless the city. और वही जो है इस शहर को आशीषित करेगा। We will see when there is unity, God will bless the city and the state and the nation. और आप देखिए कि जब हमारे अंदर में एकता होगी तब परमेश्वर इस शहर को, इस प्रदेश को और इस देश को आशीषित करेगा। The time is come. और समय आ गया है। The time has come. वो समय आ गया The है। wave of the Holy Spirit और परमेश्वर का आत्मा का लहर will engulf the city of Jaipur. वो इस जयपुर शहर को अपने आगोश में ले The लेगा। Spirit of God will envelop the state of Rajasthan. और आप जानिए कि पवित्र आत्मा जो है वो इस शहर को और इस प्रदेश को जो है अपने आगोश में ले लेगा। He is taking over. वो जो है इस समय ले Because रहा it's all है। about, he says, my church, I will build. और वो क्योंकि वो कहता है कि मेरी कलीसिया और मैं बनाऊंगा। No tension. हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं It's है। only thing we have to serve people. हमें एक We काम have to करना है कि build हमें लोगों people. की सेवा करना है, हमें We लोगों have को to बनाना encourage है, people. हमें लोगों को उत्साहित We करना have to है, disciple them. हमें उन्हें चेला We बनाना have to है, fulfill the Great Commission. हमें महान आदेश को पूरा करना That's है। all. यही It's बस। so simple. और ये बहुत आसान And है it is such a great joy and privilege to serve God. और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात और आनंद की बात है कि हम प्रभु की सेवा कर रहे You know, हैं। Jesus rebuked the church at Ephesus for having left his first love. और जो है यीशु जो है वो जो इफिसस की कलीसिया को जो है वहां पर डांटता है कि उन्होंने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। You want to restart. आपको जो है वापस पुनः You want शुरुआत that करना a है। fresh energy, a fresh surge of His Spirit to invade in your life. Then it's important that you come back to the first love. और आप जानिए आपको बिल्कुल तरोताजा ऊर्जा की जरूरत है कि आप फिर से जो है उस पहले प्रेम को प्राप्त कर Many सकें। times when we are so busy in the ministry, so many things, you know, the time we need to spend with God is very less as compared to the time we spent in the mission field. और आप जानिए कई बार हम जो है सेवकाइयों में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें जो है जा करके मिशन क्षेत्र में जहाँ पे समय बिताना है वहाँ हम नहीं बिता पाते। You want to experience that renewal in your heart? क्या आप चाहते हैं कि आप उस नएपन को अपने हृदय में प्राप्त कर सकें? Come back to the first love. आप जो है उस पहले प्रेम में आ जाएं। Come back to the first love. आप उस पहले प्रेम में आ जाएं। Yes, you may be having relationship with Jesus for 30 years, 40 years, 45 years, but if you're feeling that fatigue, you know, come back to His first love, and the banner over your life is the love of God. और आप जानिए यदि आप जो है 30 साल 35 साल से भी सेवकाई में कर रहे हैं तब फिर भी जो है आप उसके पहले से प्रेम में आ जाए। यदि आप थकित और बोझित सा महसूस कर रहे हैं तो भी आप उसके वो पहले प्रेम में आ जाए क्योंकि आपके ऊपर में वो प्रेम का झंडा है। God wants that we need to experience His love on daily basis. और परमेश्वर चाहता है कि हम जो है उसके प्रेम को प्रतिदिन के अनुसार
से प्राप्त करें। On every moment of our life. हमारे जीवन के हर एक क्षण में, Every moment of life that we dwell in His love, dwell in His presence, dwell in His awesome flowing love. और परमेश्वर चाहता है कि हर एक दिन जो है हम उसकी उपस्थिति में, हम उसके प्रेम में जो है वो बढ़ते चले जाएं। We need revival that will rekindle your old fires, the first love that we had when we accepted Jesus. और परमेश्वर चाहता है कि जो है वो हम पहला सा प्रेम को पुनर्जागृत कर दे, फिर से उसे बना दें। He rebuked a lot of other churches in the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो है वो बहुत सी कलीसियाओं को वो डांटता है। I word like rebuked. और जो है वो शब्द है डांटता है। Just you study. Most of you all are experienced Bible teachers. You all are theologians. और आप सब जो है theologians हैं, आप सब जो है बहुत ही अनुभवी बाइबल शिक्षक हैं। But he rebuked the church of Smyrna. He says, some of its members tolerate apostate believers. They were instruments of Satan. और आप देखिए स्मरणा की कलीसिया को वो डांटता है क्योंकि वे जो है शैतानी गतिविधियों में लिप्त हो गए थे। He also rebuked the church of Pergamos also. They were involved in so many wrong things. और वो परगमन की कलीसिया को भी डांटता क्योंकि वे भी बहुत सी चीजों में वे He लिप्त हो rebuked गए the थे। church of Thyatira. और Because they listened to false teachings and preaching. और वो थुआतीरा की कलीसिया को भी डांटता है क्योंकि वे भी जो है झूठी शिक्षकों में शिक्षा में जो है लिप्त हो गए थे। He declared the church at Sardis also. और वो जो है सरदिस की कलीसिया को भी वहां That said, be watchful. और वो वहां पे कहता है, घोषणा करता है और कहता है कि तू सावधान रहे। Strengthen the things that remain. और वह उन चीजों को तू बल दे, उसमें सामर्थ डाल, उसमें बल दे, जोर दे But जो Christ रहेंगी। commended the church at Philadelphia. परंतु फिलाडेल्फिया की कलीसिया को यीशु मसीह जो है उसको आशीषित करता He है। says, hold fast that no man can take that crown. और वो जो है तू जो तूने पकड़ा हुआ है उसे थामे रहे क्योंकि कोई भी जो है तुझसे Hold उस fast what मुकुट you को छीना ले। have today. और जो आज आपके पास में उसे पकड़े रहें। And Christ also called upon the members of church at Laodicea, he says, to repent and turn from that lukewarm situation. और जो है लौदीकिया की कलीसिया को भी वो कहता है कि तू जो है न गर्म है न ठंडा है, तू जो है उससे निकल करके बाहर आ। Dear servants of God, these are the days of dedication. और आप जानिए प्रिय पासबानों, ये समय है पुनः समर्पण करने का। There's so much of things upon our shoulders today. आज बहुत सी जिम्मेवारियां हमारे कंधों पर है। The destiny of the city of Jaipur, the state of Rajasthan lies on us. और आप देखिए जो है इस शहर और इस प्रदेश की जो सारी जो लक्ष्य है वो हमारे ऊपर में है। There are so many people in the city, still their eyes are closed, spiritual eyes are closed today. और देखिए आज बहुत से ऐसे लोग हैं इस शहर में जिनकी आत्मिक आंखें बंद हैं। They are not bad. वे लोग बुरे नहीं Nobody हैं is bad. और कोई भी बुरा नहीं They है। need Jesus. उन्हें यीशु की Their आवश्यकता spiritual है। eyes of understanding its closed. They need to be opened. और आज देखिए कि उनके आत्मिक आंखों को खुलना जरूरी है। Jesus died on the cross of Calvary. He shed His precious blood for every human being on the planet Earth. और आप देखिए यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा और उसने अपने लहू को बहाया हर एक व्यक्ति के लिए जो इस संसार में है। The time has come, the days of dedication. और आप देखिए समय आ गया है समर्पण का। We will not cry out to God, Lord, will you not revive me again, O God? और प्रभु अब पुकारना आवश्यकता है कि क्या प्रभु तू मुझे पुनर्जीवित नहीं There's करेगा? something that we need to come to that first love, with that expression, with that emotion. Lord, the day when I accepted you as my Lord and Savior, the same love should remain consistent. और हमें जो है वो वापस से पुनः उसके पास में आना पड़ेगा अपनी भावनाओं के साथ में और कहना पड़ेगा प्रभु मैं क्या तू फिर से उस पुनः प्रेम को मेरे में जागृत If करेगा? there is something that has gone wrong between you and God, ask God for forgiveness. Lord, I've sinned against you. I've sinned against heaven. और प्रभु यदि आपने कुछ ऐसा गलत काम किया परमेश्वर के विरुद्ध में तो आप उससे आ करके माफी मांगे और कहें प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में गलत काम किया Christian है। life is a life of a lot of many beginnings. और जो है मसीही जीवन जो है बहुत सी शुरुआतों का Many जीवन है। times we have fell down, we fall down because of number of reasons. और बहुत से कारणों की वजह से कई बार हम गिर जाते हैं। But keep getting up. परंतु तुरंत उठ खड़े हो। The righteous will fall 7 times, yet he will rise up again. और धर्मी जन जो है 7 बार भी गिरे परंतु वो पुनः उठ उठेगा। God is there to strengthen us. और ये यीशु परमेश्वर है जो हमें बल Bible देगा। says he shall give you hands, feet, and you shall leap over the wall. और वो जो है कहता है कि तुम्हें जो है Hands.
और वो जो है वो तुम्हें हिरणों का सा पैर देगा और तुम उछल कूदोगे। If you're feeling, if your legs are tired, यदि आप महसूस करते हैं कि आपके पैर थके हुए हैं, come back to His first love. आप उस पहले प्रेम में आ He will जाएं renew you. और वह आपको ताजा कर He will देगा revive you. और वह नई शुरुआत आप पुनर्जीवित कर देगा You will be able to restart. और आप जो है पुनः शुरुआत And कर you will पाएंगे get an hind's feet to leap over the wall. और आपके पास में जो है हिरणों का सा पैर हो जाएगा कि आप दीवारों को पार कर Make a जाएं। resolve, make a divine resolve in your heart. आप जो है आज जो है अपने हृदय में जो है उन चीजों को ठीक कर लें That God wants me to move further. कि परमेश्वर चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। We need revival that will restore joy and victory. अब जानिए हमें जागृति की आवश्यकता है जो हमारे अंदर जो है आनंद को और जो है विजय को स्थापित The कर सके। joy of the Lord is my strength. और परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। Amen. आमीन। There's nothing can give us joy. और कुछ और चीज नहीं जो हमें आनंद दे सकता है। The world can't, that has nothing to offer. और इस संसार में कुछ भी नहीं है जो हमें दे सकता है। There is so much of deception. Everything is very blur. और बहुत ढेर सारे धोखे हैं वहां पे सब कुछ धुंधला सा है। But only in the presence of God. परंतु केवल परमेश्वर की उपस्थिति Only में, in the presence of God. केवल परमेश्वर की उपस्थिति Only में, at the feet of Jesus. यीशु मसीह के ही कदमों में There is joy, there is peace that passeth all our understanding. और जो है वो उसके पास में आनंद और वो शांति जो सारे समझ से परे है। Those who are seated here, my fellow brethren, और जो यहाँ पर बैठे मेरे प्रिय भाइयों, things are changing. आप जानिए कि चीजें बदल रही हैं It's changing. और बदल If you रही हैं। if you see in the spirit realm, things are moving. और अगर आप आत्मा की चीजों में देखेंगे तो चीजें आगे बढ़ रही हैं He is moving by His Spirit. और वह उसकी आत्मा के द्वारा आगे बढ़ रही You है। know, all of a sudden things will change drastically. Let me tell you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ अचानक से सब चीजें बदल जाएंगी। COVID-19, changed the whole game. और आप देखिए जो कोविड-19 है उसने पूरे खेल को जो है बदल दिया। I won't say game changer. मैं उसे कोविड-19 को जो है खेल बदलने वाला नहीं कहूँगा। No, it is God reset lot of things. क्योंकि इसमें जो है परमेश्वर बहुत सी चीजों को ठीक किया Yes, है। we lost lot of our dear friends. हम जानते हैं कि हमने बहुत से अपने प्रिय We मित्रों have को खो दिया seen lot of pain and agony throughout the world. और हमने पूरे संसार भर में जो है दर्द को और दुख को देखा है। But those who have slept in the Lord, परंतु जो प्रभु में सो गए they हैं are in the presence of God. और वे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। Amen. आमीन। Let me tell you, my dear brothers and sisters, और मेरे प्रिय भाई और बहन मैं आपको बताना चाहता हूँ we need the revival of that will restore joy and victory. और हमें उस पुनर्जीवित होने की उस A जागृति की जरूरत है sense जो हमारे of अंदर आना और शांति overcoming. देता है। वो उस महसूस में उस एहसास में आना जहाँ पे हम जो है आगे बढ़ सकते We are हैं। overcomers through Christ. हम लोग जो है वो आगे विजय को We प्राप्त are करने वाले more लोग than हैं। conquerors through Christ who gives us strength. हम जैवन से भी बढ़ करके लोग हैं। And God's people are not weaklings. परंतु आप लोग जानिए कि परमेश्वर के लोग जो है कमजोर कड़ी नहीं They are है not timid people. और वे लोग जो है ऐसे ही लोग नहीं हैं But they are bold and they are courageous people. परंतु वे लोग साहसिक लोग हैं। They face the situation with God's boldness. और आप देखिए कि जो परमेश्वर के लोग हैं वे परमेश्वर की साहस से चीजों का God's सामना people करते are हैं। powerful people. God's people, they are peculiar people. They are class apart. God has chosen them and they have that unique identity in Christ. और आप जानिए परमेश्वर के लोग जो है अलग किए हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग जो चुने हुए लोग हैं और उनके अंदर में परमेश्वर की चीजें हैं। If you are feeling discouraged this morning, यदि आज आप जो है अपने आप में निरुत्साहित महसूस करते हैं, don't wallow in self-pity. आप अपने आप को जो है स्वयं के बेचारेपन में ना ले जाएं Don't say, who will rescue me? और आप बेचारेपन में ना चले जाओ, ऐसा ना कहें कि कौन मुझे इससे छुड़ाएगा। Where am my ministry going? How will things go further? Don't worry about those things. The ministry has come from God. You are serving Him. और आप जानिए कि जो है सेवकाई परमेश्वर की ओर से आई है और आप उसकी सेवा कर रहे हैं। Amen. Amen. Philippians chapter 3 verse 13 and 14 says, "Brethren, I count myself not to be apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth into those things which are before, I press towards the mark of the prize of high calling of God in Christ Jesus." और फिलिपियों उसका 3रा अध्याय उसका 13 और 14 पद इस प्रकार से कहता है कि मैं एक काम करता हूं और वो ये कि मैं पीछे की बातों को भूल करके आगे की ओर बढ़ा चला जाता हूं ताकि जो मेरे सामने धरा है उसे मैं प्राप्त कर सकूं, और वह है परमेश्वर की बुलाहट प्रभु यीशु मसीह में। Amen. आमीन। Press towards the mark of the prize of high calling of God in Christ Jesus. आप देखिए वह बड़ी
बुलाहट जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें दी है उसकी ओर बढ़ें। Forget the past. आप पीछे की बातों को भूल जाएं। Yes, past have taught us lot of lessons. आप जानिए, हाँ सच है कि जो है हमारा भूतकाल जो है हमें बहुत सी चीजों को Think सिखाया है। about the present and the future. आप आज के बारे में सोचें और कल के बारे में निर्णय लें। And how is the present and future? और जो है हमारा आज और कल क्या है? Bleak? धुंधला सा? No, नहीं, it is promising. वो जो है वाचा में है, It's glorious. और वो महिमा में है, It's full of God's glory. और ये परमेश्वर के पूर्ण महिमा से है। God's kingdom is full of His glory, of His power and His might. आप जानिए परमेश्वर का राज्य जो है पूरे महिमा में है, पूरा आदर Nobody और can शांति में। stop God's people. और आप जानिए कोई भी चीज जो है परमेश्वर के लोगों को रोक Nobody नहीं can सकती। stop God's moving of His Spirit. और परमेश्वर की आत्मा को काम करने से कोई भी चीज रोक नहीं He is सकती है। moving. वो काम कर The रहा है, creator of the universe, और वो जो सृष्टि का रचयिता है, ever living, all sufficient God, और वो सर्व जीवित और जो है पूर्ण रूप से परमेश्वर जो है sustainer जी of रहा है। all things, वो सब चीजों को जो बांध रखा है, giver of life and taker of life. और वो जो है जो जीवन को देता और जीवन को ले लेता है। What a glorious, mighty God we serve. और हम कितने महिमा में परमेश्वर की सेवा करते हैं। Let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, you are powerful. आप सामर्थशाली हैं। You are chosen of God. आपको परमेश्वर You ने are a चुना child है। of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। God has placed you in a strategic position. परमेश्वर ने आपको रणनीतिकार क्षेत्रों में रखा God है। has given you a strategy. और परमेश्वर ने आपको रणनीतियां दी है। The enemy will try to hamper your progress. और आप जानिए कि शत्रु जो है आपकी बढ़ती को रोकना चाहता है। Yes? हाँ। Enemy will try to speak against you. और शत्रु आपके विरुद्ध में बात He करेगा। will devise some schemes and enemy to topple you. और कई बार जो है शत्रु आपके लिए कई एक योजनाओं को बनाएगा कि आपको गिरा दे, But nobody can touch you. परंतु कोई भी आपको छू नहीं सकता। Nobody can touch you. कोई भी आपको छू No नहीं सकता। spells and curses and devices and schemes of the enemy will not touch you because you are chosen of God. You are covered under the precious blood of Jesus. और आप जानिए कि कोई भी मंत्र, कोई भी श्राप जो है आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। The angels of God are protecting you. और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा कर रहे So हैं। we are on the winning side. तो इसलिए हम लोग जीत की ओर We are हैं। not on the losing side. हम हार की तरफ नहीं We are हैं। on the winning side. हम लोग जीत की तरफ हैं। God will take His people from one level to the next level. और परमेश्वर आपको एक स्तर से दूसरे स्तर में ले जाएगा। Next level. वो दूसरे स्तर में ले No जाएगा। status quo. और वहां पर कोई देखने वाला दूरबीन नहीं है। The more you are in His presence, जितना ज्यादा आप जो है उसकी उपस्थिति में जाएंगे, God will elevate you. परमेश्वर उतना ज्यादा आपको He उठाएगा। will elevate you. वो आपको उठाएगा। He will open doors for you. वो आपके लिए दरवाजों को You will खोलेगा। meet people. वो आप लोगों से मुलाकात You will करेंगे। talk to them. आप उनसे बात करेंगे। You'll talk about Jesus. आप यीशु के बारे में बात करेंगे And their lives will be transformed. और उनका जीवन बदल जाएगा। That is the power that God wants to manifest through your life. और ये वो सामर्थ्य जो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा दिखाना Don't चाहता get है। discouraged, my brothers and sisters. इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जो है निरुत्साहित ना हो। We are living in the last of last days. और हम जो है इस दिन के जो आखिरी समय में हैं। Remember, it's God's Spirit that will revive us. और आप याद रखेंगे परमेश्वर की आत्मा है जो हमें पुनर्जीवित करेगा। And God wants us, that we need to be honest with Him. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ ईमानदार We हों। must be repentant. हम जो है पश्चातापी हों। If you want to really experience that revival, renewal and restart in our life, then we need to have that repentant heart. और यदि आप सच में चाहते हैं कि आप पुनर्जीवित हों, आपके अंदर में नयापन आ जाए, आप नई शुरुआत कर सके, तो इसलिए जरूरी है कि आपका एक पश्चातापी हृदय If हो। there is something, if there is some pride or something that is not according to His word, nothing will take place. और यदि याद रखिए, यदि आपके अंदर कुछ घमंड या कुछ और बात है, तो आप कुछ भी कभी भी जो है उसमें बढ़ नहीं पाएंगे। We must see sin as it is. हम पाप को पाप के रूप में ही देखें। Sin is a gross violation of God's holy law. और आप जानिए कि जो पाप है वह परमेश्वर के प्रेम के विरुद्ध में We have है। to confess it. आपको उसे मानना We जरूरी have to है। repent it. हमें पश्चाताप करना जरूरी And we है have to forsake it. और उसे हमें छोड़ना जरूरी है। Amen. आमीन। The time has come that the city needs, friendship and relationship and love between each other. और आप जानिए समय आ गया है कि जो शहर है वहां पर मित्रता और संबंध की आवश्यकता है। And, एक साथ जुड़ने and की God जरूरत will है। do that. God is doing, and He will do it in a more way. और जो है परमेश्वर उसे कर रहा है और परमेश्वर उसे और अधिक करेगा। In a personal revival.
वो व्यक्तिगत जागृति means individuals are getting right with God. और इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ सही होना। Am I right with God this morning? क्या आज की सुबह में मैं परमेश्वर के Or साथ is there संबंध some में हूँ? gaps between me and God? कि या फिर मेरे और परमेश्वर के बीच में कुछ Or खाली are स्थान there है? some communication back between me and God? या फिर जो है मेरे और परमेश्वर के बीच में कुछ संचार की Or कमी maybe है। some hide and seek, or some things are not clear. There's some things I'm trying to hide under the carpet. और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे मैं जो है कारपेट के अंदर जो है छुपा रहा हूँ। We need home revival. हमें जो है हमारे परिवार में जागृति की जरूरत है। Family getting back and giving that place to God. और आप देखें कि जो लोग हैं, परिवार है, वह जो है वापस पुनः स्थापित होगा कि Our परमेश्वर के children, साथ में प्रेम our बन जाए। children, walking in the ways of God. और हमारे बच्चे जो है परमेश्वर के मार्ग में चलें। They're walking and they give their life to Jesus to serve Him all the days of their life. और वे जो है उसमें चल रहे हैं और वे अपने जीवन देते हैं कि पूरे जीवन भर उसकी सेवा करेंगे। And what we need is a kind of a city revival or state revival in the state of Rajasthan. और हमें क्या आवश्यकता है कि हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में जागृति आ जाए। And that's why the psalmist asked a very interesting question, Lord, will you not revive me again? और इसीलिए जो है भजन का लिखने वाला इस प्रकार से कहता है, क्या प्रभु तू हमें पुनः जीवित नहीं That my करेगा, people may rejoice in thee. ताकि पर लोग जो है तुझ में आनंद The मना time सकें। has come, the city of Jaipur should do rejoicing in the Lord. और आप जानिए कि समय आ गया है कि जयपुर शहर के लोग जो है उसमें आनंद That the मनाएं city will become a city of rejoicing. और ये शहर ऐसा शहर बन जाए जो आनंद का शहर है। Amen. Not a आमीन। city of depression. ओ ये जो है निराशा का शहर नहीं, No. नहीं, A city of rejoicing. परंतु आनंद का A city शहर। of rejoicing. ओ आनंद का शहर And बन you जाए। and I will have to play a key role in making the city a city of joy. और इसीलिए जो है आप और मैं जो है एक बहुत ही मुख्य भूमिका को निभाते हैं ताकि ये You know, शहर जो है आनंद का शहर बन You know, जाए। Jaipur is so unique. आप जानते हैं जयपुर बहुत ही अलग Part है of the Golden Triangle. और ये जो है गोल्डन ट्रायंगल का भाग Whenever है। I travel around the world, I tell about Jaipur. They say, "Oh, Jaipur." और जब कभी मैं जो है संसार भर में घूमता हूं, लोगों से बात करता हूं, मैं कहता हूं मैं जयपुर से हूं, तो वे कहते हैं अरे Oh, जयपुर, Rajasthan. ओ राजस्थान से। Unique city, unique state. और आप जानिए बहुत ही अलग जो है शहर है और अलग Each प्रदेश है। district has its own, its own beauty. और आप जानिए हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है अपने अपने रूप में अपनी People are खूबसूरती को लिए हुए fascinated हैं। by this state. और लोग जो है इस प्रदेश से बहुत ज्यादा प्रेम That करते हैं। doesn't mean all other states are bad, okay? इसका ये अर्थ नहीं कि दूसरे जो राज्य हैं खराब हैं। India is beautiful. It is an incredible country. और आप जानिए जो है भारत जो है वो अतुलनीय देश Unique है country. और बहुत ही अतुलनीय Very देश है colorful country. और बहुत ही रंग बिरंगा देश A है। beautiful culture in our country. हमारे देश में जो है बहुत ही अद्भुत संस्कृति Praise है। God for India. भारत के लिए प्रभु की महिमा God हो। bless a beautiful country. और परमेश्वर हमारे इस सुंदर देश को आशीषित करे। Coming back to God. परमेश्वर के पास आना। Understanding, understand. Let's tune our hearts, to understand the heartbeat of God. आइए अपने हृदय को इस प्रकार से ट्यून करें कि वह परमेश्वर के हृदय की धड़कन को समझ सके। What is God's heartbeat? और परमेश्वर के हृदय की धड़कन क्या What है? is God speaking to me for my family, for my local church और in the city of Jaipur? और परमेश्वर मुझसे, मेरे परिवार से और मेरे शहर के लिए मुझसे क्या बातें कर रहा है? God wants his name to be exalted among the nations. और आप जाने परमेश्वर चाहता है कि सारे देशों के मध्य में परमेश्वर का नाम महिमा पाए। The current reality, let's visualize the current reality and see where we stand in the light of his word. और आप जानिए कि जो इस समय की जो सत्यता है वो क्या है, आधारभूत सत्यता Let's क्या not है। get bogged down with our everyday life, आइए हम जो है अपने प्रतिदिन के जो जीवनचर्या है उसमें ना लग जाएं, but get into that inner closet. परंतु आइए हम जो है परमेश्वर के साथ निकटता के Let's संबंध pray में for जाएं। each other. आइए एक दूसरे के लिए प्रार्थना Let's करना pray शुरू for करें। this city of, pray for each servant of God. आइए हम जो है हर एक शहर के हर एक सेवक के लिए प्रार्थना Let's करना शुरू करें। compliment and let's appreciate each pastor and each local fellowship. आइए हम एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे को जो है उत्साहित करना शुरू करें, एक दूसरे को And जो है when appreciate करना that शुरू thing करें। happens, और जब वो होता है that will trigger city revival. वो जो है इस शहर को जागृति मिली जाएगा। That will trigger city revival. और वो जो है इस शहर को जागृति मिली जाएगा। When then there's nothing comes between us, it is just we are brothers and co-laborers,
and that is what God wants. और आप जानिए जब हमारे बीच में कुछ भी नहीं होता, कोई दीवार नहीं है, हम जो है एक साथ काम करने वाले सेकर में एक साथ आ जाते हैं, तो वो जागृति को लेके आता है। Believing what the word of God says, और विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। practicing the word of God. परमेश्वर के वचन को जो है हम जो है प्रायोगिक रूप से When we अपने जीवन start में उतारें। practicing the kingdom principles, जब हम जो है परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के जो राज्य के नियम है उसको You will लागू enjoy करना the शुरू करते हैं। presence of God. तो आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद but उठाना when शुरू we करते start हैं। observing and implementing human things, then there will be a big problem. पर जब आप जो है मानवीय बातों को जो है लेना शुरू करते हैं, मानवीय बातों को जो आप लागू करना शुरू करते हैं, तो वहां समस्या हो When we जाती start है। following the human framework, then there will be problem. और जब हम जो है मानवीय रूप से बनाए गए चीजों को करना शुरू करते हैं, तो But वहां पे when समस्या हो जाती है। we follow God's kingdom framework, there is liberty, there is joy, there is progression. There's so many things that happen. परंतु जब हम परमेश्वर के राज्य के उस फ्रेमवर्क को लागू करना शुरू करते हैं, तो वहां पे आनंद, छुटकारा और बड़ी शांति आती So है। let us cry out to God इसलिए आइए हम परमेश्वर को पुकारें and beseech Almighty Jehovah God. और हम जो है उस यहोवा जो सर्व सामर्थ्य है उसको Lord, थाम will लें। you not revive me? Will you not energize me? Will you not pour your spirit and recharge me, O God, that I may enjoy, rejoice in thee? और क्या परमेश्वर तू मुझे पुनर्जीवित नहीं करेगा? क्या तू मुझे तरोताजा नहीं करेगा? क्या तू मुझे नई शुरुआत करने नहीं देगा, ताकि मैं जो है तुझ में आनंद मना Lord, सकूं? show me thy mercy. Have mercy on me and grant thus thy salvation. और प्रभु तू जो है अपने अनुग्रह को दिखा प्रभु जी, ताकि हम जो है तेरे उस अनुग्रह में बढ़ने पाएं। God is moving by His Spirit all over the earth. और आप देखिए कि परमेश्वर जो है पूरी पृथ्वी पर जो है अपनी आत्मा के The साथ only चल thing we रहा have है। to yield our lives to Him. और एक ही काम हमें करने की आवश्यकता है कि हमें अपने जीवन The से only thing समर्पित we have to करना do is the alignment. We have to align our lives to Him. है। और देखिए कि हमें एक चीज करना है कि हमारे जीवन को उसके साथ अलाइन करना When the जरूरी whole है। city aligns with God's, heartbeat, His vision, God will pour His mercy and His strength and healing and restoration in the city of Jaipur and the state of Rajasthan. और आप जानिए जब पूरा शहर जो है सब लोग जो है अपना हृदय जो है परमेश्वर के साथ अलाइन कर लेंगे, एक साथ में जोड़ लेंगे, तो परमेश्वर जो है इस शहर को, इस प्रदेश को जो है चंगा करना शुरू करेगा और जागृति आएगी। This day, this moment, this year will never come back again. और आप जानिए ये दिन, ये क्षण, ये वर्ष जो है दोबारा कभी नहीं This आएगा। kingdom opportunity given to you and to me और जो ये राज्य का अवसर आपको और मुझको दिया गया है to listen to the voice of God कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने and to see what God is speaking to me. और क्या परमेश्वर मुझसे कह रहा है उसको सुन And when सकें। we quickly align our lives to Him, we will experience God's presence. और जब हम तुरंत ही जो है अपने आप को उसके साथ में जोड़ लेंगे, एक सीध में कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे, तो वो आत्मा हमसे बोलेगा। Let us close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें। Hallelujah. हालेलुया। God has spoken to us this morning. परमेश्वर ने आज की सुबह में हमसे बातचीत किया है। He has spoken to us very clearly, very vividly. और उसने बिल्कुल साफ तौर से बहुत अद्भुत ढंग से हमसे बात किया है। He's saying, I love you. God is saying to us, each one of us, that He says, I love you. और वो हम में से प्रत्येक से कहता है कि वह हमसे प्यार करता है। He left the splendor of heaven. Jesus left the splendor of heaven. और यीशु मसीह ने उस स्वर्ग के महिमापन को छोड़ करके He came down वह पृथ्वी पर आ गया to save mankind from eternal destruction. ताकि मनुष्य जाति को अनंत उस अनंत नाश से बचा सके। He died on the cross of Calvary. वह कलवरी क्रूस पर मरा, His body was broken. उसके शरीर को तोड़ दिया He गया। shed His precious blood. उसने अपने कीमती लहू को बहा He दिया was buried. On the third day He rose up again. और वो जो है उसे गाड़ दिया गया और तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठा। And later on He ascended to the right hand of the Father. और उसके बाद वह पिता के दाहिने जा बैठा And the same Jesus is coming again. और वह यीशु फिर से आ रहा है। And what a joy for us to know and to have relationship with Jesus. और ये हमारे लिए कितने बड़े आनंद की बात है और ये जानना कि वह यीशु हमसे प्यार करता है। Dear friends, प्रिय मित्रों,
in this last of last days and last moments as we see the coming of Jesus. और जब हम इन अंतिम दिनों में और अंतिम क्षणों में यीशु के आने को देखते हैं, Let us redeem the time. आइए हम समय को छुड़ाएं, Let us run with God's purposes. परमेश्वर की योजनाओं के साथ में दौड़ें. Let us not get bogged down in our everyday schedule, but let us run with His purpose. आइए हम अपने समय सूची में न व्यस्त हो जाएं, परंतु परमेश्वर के उद्देश्य में दौड़ें. Let us rearrange, reorganize, and prioritize certain things in our life. आइए हम वापस से अपने आप को पुनः सुसज्जित करें, पुनः तैयार करें और अपनी चीज़ों को जो है महत्वपूर्णता देना शुरू करें प्रभु में, A new strength from above. ताकि हम उसके सामर्थ्य को स्वर्ग से प्राप्त कर सकें. Hallelujah. Father, thank you and bless you for this time. Thank you for your word. Every word that has been heard, Lord, will be sealed by your Holy Spirit, O God. और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए, हर एक वचन के लिए जो बोला गया है. प्रभु हम हर एक वचन को तेरा मुहर लगाते हैं. Thank you for each servant of God. हम धन्यवाद करते हैं हर एक पासबानों के And लिए. bless them, bless their family, bless their local fellowship, bless their coming in and their going out. और प्रभु आप उन्हें आशीषित करें, उनके परिवारों को आशीषित करें, उनके स्थानीय कलीसियाओं को, सेवकाइयों को आशीषित करें Lord, प्रभु. we say, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. और ताकि हम सब कह सकें कि सचमुच में परमेश्वर के दया और अनुग्रह सदा विश्वासियों के साथ सदा तक जो है मेरे जीवन में बना रहेगा और मैं परमेश्वर के निवास स्थान में सदा सदा तक. Thank you for hearing our prayers. धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना. In Jesus' matchless name. यीशु के नाम से. And all God's people say, आमीन. Amen, Amen, Amen. Be blessed of the Lord. Amen. आप परमेश्वर से Thank you, आशीष पाओ. Jesus. आमीन. Thank you, Jesus. Thank you.